My name is Sara Farooq, registration number 21TE40. The first lab of digital signal processing is basic plotting of signals using MATLAB. The task number 1 is in the context of digital signal processing. Elucidate the essence and intricacies encapsulated within the term digital. In digital signal processing, डिजिट जो होते हैं वो हमारे पास रेफर करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिग्नल्स को यूजिंग डिस्क्रीट वैल्यूज typically in the form of numbers. Unlike continuous analog signals, digital signals are quantized into finite levels, allowing for precise manipulation and effective bit processing using algorithms. The essence lies in converting the continuous signals into the discrete form for analysis, storage and transmission. इसमें हमारे पास टेक्निक्स आ जाती हैं सैम्पलिंग क्वांटाइजेशन एंड वेरियस सिग्नल प्रोसेसिंग एल्गोरिथम जो अप्लाई होते हैं डिस्क्रीट रिप्रेजेंटेशन में। हमारे पास सैम्पलिंग होती है, ये हमारे पास प्रोसेस होता है कि हम कन्वर्ट करें कॉन्टीन्यूस टाइम सिग्नल्स को डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में। और क्वांटाइजेशन हमारे पास होती है कि हम मैपिंग करें सैंपल को फ्रॉम कॉन्टीन्यूस रेंज फॉर टू अ फाइनाइट सेट ऑफ डिस्क्रीट वैल्यूज। Second task is explain how the choice between linear search and binary search in DSP application illustrates the relationship between digital data and sorting and what are the implications for data processing efficiency. The linear search and binary search reflects the trade-off between simplicity and efficiency in handling digital data. Linear search जो होता है हमारे पास उसका मतलब है कि हमारे पास sequentially checking each element in the data until a match is found. It is a straightforward but can be time-consuming for large datasets. This mirrors the basic nature of digital data processing in facing straightforward manipulation of individual data points. Binary search हमारे पास exploits करता है कि ordered nature of data and efficiently narrows down the search space by repeatedly dividing it in half. जो implications हैं डाटा प्रोसेसिंग एफिशिएंसी की वो हमारे पास सिग्निफिकेंट है। डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग में वेयर रियल टाइम प्रोसेसिंग और रिसोर्स कॉन्स्टेंट्स जो है वो हमारे पास बहुत ज़रूरी है कि हम चूज़ कर सकें कि कौन सा सर्च एल्गोरिथम जो है वो हमारे पास ज़रूरी है। बाइनरी सर्च जो होता है वो हमारे पास एफिशिएंट है कि हम सॉर्टेड कर सकें डाटा को, इनहेंस प्रोसेसिंग की जो स्पीड है उसको एनहांस कर सकें, ज़्यादा कर सकें, स्पेशली व्हेन डीलिंग विद लार्ज डाटा सेट। जब हम लार्ज डाटा सेट्स को हैंडल कर रहे होते हैं उसके लिए इट रिक्वायर्स द डाटा टू बी सॉर्टेड। इसके लिए ज़रूरी होता है कि हमारे पास डाटा जो है वो सीक्वेंशली फॉर्म में हो, एडिंग अ प्री प्रोसेसिंग स्टेप एंड पोटेंशियली ओवरहेड। Third task is in the domain of digital data, what strategies and techniques can be employed to enhance data transmission efficiently? Several techniques and strategies can be employed to enhance data transmission efficiently. Compression technique. Utilize compression algorithms to reduce the size of data before transmission, minimizing the bandwidth requirements. Error detection and correction. Implement error detection and correction codes to ensure data integrity during transmission। ये हमारे पास हेल्प करता है कि हम आइडेंटिफाइंग कर सकें और correcting errors that may occur during communication process। The third is data prioritization. Prioritize the communication of critical or time-sensitive data to ensure timely delivery. This is particularly important in real-time applications. Bandwidth management efficiently manage available bandwidth by dynamically adjusting data rates based on network conditions. This can prevent congestion and enhance overall throughput। टास्क नंबर 4 है कि हमारे पास टाइम लिमिट दी हुई है 0 से 1। ये 0 से 1 जो है हमारे पास टाइम की रेंज है और हमारे पास 0.01 जो है वो हमारे पास स्टेप साइज है। इसका मतलब ये है कि टाइम सिग्नल जो है वो सैंपल हुआ हुआ है इंटरवल्स ऑफ 0.01 सेकेंड और टाइम रेंज जो है वो 0 से 1 है। फ्रीक्वेंसी
वन का मतलब ये है कि हमारे पास फ्रिक्वेंसी जो है वो सेट की हुई है 1 हर्ट्ज तक, और इट इज़ अ सिंपल साइन वेव विद 1 ऑसिलेशन पर सेकेंड। उसके अंदर ऑसिलेशन जो है 1 सेकेंड है। और जो है सिग्नल जो है साइन साइन का सिग्नल है, और साइन वेव सिग्नल फार्मूला इसमें लगेगा साइन का जो होता है 2 पाई ft, वेयर जो एफ जो है वो फ्रिक्वेंसी है और टी जो है हमारे पास टाइम वेक्टर है। और सिंपल लास्ट में हमारे पास जो है प्लॉट जो है टी और सिग्नल का मतलब ये है कि सिग्नल अगेंस्ट टाइम वेरिएंट जो है उसमें प्लॉट होगा। और हमारे पास ये आउटपुट की ये जो वेव आ रही है, ये हमारे पास जो आ रही है वेव, हमारे पास वो साइनोसाइड साइन की वेव आ रही है। अगर मैं इधर इसकी फ्रिक्वेंसी अगर मैं चेंज कर लेती हूँ, अगर मैं 4 कर देती हूँ, जब इसको रन करूँगी तो हमारे पास ये फ्रिक्वेंसी जो है वो फोर फ्रिक्वेंसीज आ जाएंगी। अगर मैं यहाँ पे टाइम की लिमिट जो है वो मैं कर दूँ 5 कर दूँ, तो हमारे पास आएंगे, ये हमारे पास आ जाएंगे ये टाइम की लिमिट, मतलब जो एफ होता है वो 1/t के इक्वल होता है, जो डायरेक्ट रिलेशन जो होता है इन्वर्स रिलेशन है टाइम के साथ फ्रिक्वेंसी का। अगर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो टाइम कम है, अगर टाइम ज़्यादा है तो फ्रिक्वेंसी कम है। टास्क नंबर 5 है कि हमारे पास टाइम की रेंज दी हुई है 0 से 1, और 0.01 जो है वो हमारे पास स्टेप साइज है। फ्रिक्वेंसी जो है 1 है, हमने फ्रिक्वेंसी को सेट किया हुआ है साइन वेव की फ्रिक्वेंसी को 1 हर्ट्ज, और सिग्नल जो है साइन 2 पाई ft है, और प्लॉट कर देना है टी, और सिग्नल का मतलब ये है कि सिग्नल अगेंस्ट टाइम वेरिएंट। आगे हमारे पास जो टाइटल जो है प्लॉट द साइन वेव ऑफ 1 हर्ट्ज का मतलब ये है कि ऐड टाइटल इनटू द प्लॉट। वाई लेबल का मतलब वाई लेबल एम्पलीट्यूड का मतलब है कि लेबल्स द वाई एक्सिस ऑन एम्पलीट्यूड, वाई एक्सिस को एम्पलीट्यूड मतलब वाई एक्सिस पे लेना है। एक्स लेबल का मतलब है टाइम जो है वो एक्स एक्सिस में लेना है, और एक्सिस जो है -0.5 1.5 -1.5 और 1.5। इसका मतलब ये है कि सेट्स द एक्सिस लिमिट्स टू इंश्योर द प्लॉट शोज अ पोर्शन ऑफ साइन वेव एंड फिट्स इट वेल इनटू द प्लॉट एरिया। जब ये हम रन करेंगे कोड को तो हमारे पास कुछ इस तरह की वेव आएगी। तो ये हमारे पास होगी वेव, प्लॉट ऑफ साइन वेव ऑफ 1 हर्ट्ज। टास्क 6 जो है हमारे पास, उसमें भी हमारे पास टाइम की लिमिट दी हुई है 0 से 10, और 0 to 10 सेकेंड, और स्टेप साइज जो है वो 0.01 है। अब F1 जो दिया हुआ है वो फ्रिक्वेंसी जो 1 दी हुई है sets the frequencies of two sine wave signal y, और with the frequency of 10 hertz, और सिग्नल 2 जो है मतलब F2 फ्रिक्वेंसी 2 जो है वो 520 दी हुई है, मतलब हमने सिग्नल 2 को जो है सिग्नल 2 की फ्रिक्वेंसी को हमने 520 हर्ट्ज में सेट कर देना है। सिग्नल 1 जो है वो हमारे पास साइन 2 पाई ft जो है वो हमारे पास F1 2 पाई t, मतलब फर्स्ट साइन वेव सिग्नल है, और सिग्नल 2 जो है वो हमारे पास सेकंड साइन वेव सिग्नल है। प्लॉट टी साइन सिग्नल 1 और सिग्नल टी सिग्नल 2, तो दोनों सिग्नल्स को प्लॉट कर देना है। प्लॉट बोथ साइन वेव्स ऑफ सेम with time on the x-axis and signal amplitude on the y-axis। और टाइटल प्लॉटिंग मल्टीपल सिग्नल्स इन द सेम फिगर, मतलब इसमें टाइटल प्लॉट कर देना है, ऐड द टाइटल टू द प्लॉट। वाई सिग्नल में हमने एम्पलीट्यूड रख देना है, और एक्स सिग्नल में हमने टाइम को सेकंड्स में रख देना है। एक्सिस 0 1 -1 1 का मतलब ये है कि सेट्स द एक्सिस लिमिट टू फोकस ऑन द portion of the plot where the amplitude values are in the range -1 to 1। और हमारे पास ये रन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लॉट ऑफ साइन वेव। टास्क नंबर 7 है हमारे पास, इसमें टाइम जो दिया हुआ है, टाइम की लिमिट जो दी हुई है वो हमारे पास दी हुई है 0 से 10, और 0.01 जो है वो स्टेप साइज है। फ्रिक्वेंसी 1 जो है वो 10 है, मतलब फर्स्ट साइन वेव जो है उसकी फ्रिक्वेंसी जो है 10 हर्ट्ज है। F2 जो है हमारे पास फ्रिक्वेंसी 2 है, वो हमारे पास 520 हर्ट्ज है, मतलब सेकंड साइन वेव की
फ्रिक्वेंसी हमने सेट कर देनी है 520 हर्ट्ज तक। सिग्नल 1 जो है हमारे पास वो साइन f1 2 पाई टी मतलब जनरेट्स द फर्स्ट साइन वेव सिग्नल यूजिंग द फार्मूला ऑफ साइन फंक्शन। प्लॉट जो है करना है हमारे पास टाइम सिग्नल 1 को, प्लॉट द फर्स्ट साइन वेव यूजिंग डॉट्स एज मार्कर्स। ठीक है। होल्ड ऑन की कमांड जो है हमारे पास जो लगा हुआ है होल्ड ऑन, उसका मतलब ये है कि हमारे पास कीपिंग द करंट प्लॉट एक्टिव फॉर फर्दर एडिशन। सिग्नल 2 जो है हमारे पास साइन f2 2 पाई टी मतलब जनरेट द सेकंड साइन वेव सिग्नल, प्लॉट टी सिग्नल 2 और आर का मतलब ये है कि प्लॉट द सेकंड साइन वेव यूजिंग रेड डॉट्स मतलब आर डॉट एज मार्कर्स। होल्ड ऑफ की कमांड क्या करेगी, एंड द होल्ड ऑन स्टेट अलाउइंग फॉर द न्यू प्लॉट विदाउट कंबाइनिंग इट विद द प्रीवियस वन। साउंड सिग्नल टू 16,000, इसका मतलब ये है कि हमारे पास प्लेस जो है प्लेस द सेकंड साइन वेव्स एज एन ऑडियो सिग्नल विद द सैम्पलिंग रेट जो है हमारे पास 16,000 हर्ट्ज है। तो सैम्पलिंग रेट जो है हमारे पास 16,000 हर्ट्ज है। और टाइटल टाइटल की कमांड क्या करेगी, प्लॉटिंग विदाउट कनेक्टिंग डॉट्स का मतलब इसमें हमने ऐड कर देना है टाइटल्स को प्लॉट में। वाई लेबल एम्पलीट्यूड्स लेबल द एक्स वाई एक्सिस में करेंगे और एक्स लेबल टाइम एंड सेकेंड लेबल द एक्स एक्सिस। एक्सिस जो है हमारे पास 0 1 -1 और 1 है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास सेट्स द एक्सिस लिमिट्स टू डिस्प्ले ओनली द पोर्शन ऑफ द प्लॉट वेयर टाइम इज बिटवीन। टाइम जो होगा वो 0 से 1 के दरमियान होगा और एम्पलीट्यूड्स जो होंगे वो -1 से 1 के दरमियान होंगे। जब मैं इसको रन करूँगी मेरे पास ये हमारे पास ग्राफ आएगा, ये हमारे पास कोड है, इसमें हमारे पास जनरेट रैंडम डाटा फ्रॉम अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि ये हमारे पास एक कमेंट है जैसे जो कि इंडिकेट कर रही है कि कोड का क्या पर्पस है। n इज इक्वल्स टू 50 मतलब इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो वेरिएबल n है उसको 50 n टू 50 रिप्रेजेंट जो कर रहा है वो हमारे पास नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स कितने डाटा पॉइंट्स के नंबर्स हैं जो कि जनरेट होंगे। r इज इक्वल टू रैंड n डॉट n कोमा 1 का मतलब ये है कि जनरेट अ कॉलम वेक्टर r, एक कॉलम वेक्टर r को जनरेट करना है जिसके अंदर 50 रैंडम नंबर्स होंगे जो कि ड्रॉन निकले कहाँ से हैं फ्रॉम अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन 0 से 1 के दरमियान। प्लॉट आर का मतलब ये है कि हमारे पास प्लॉट द रैंडम डाटा पॉइंट्स ऑन द वाई एक्सिस, प्लॉट करना है कि रैंडम डाटा पॉइंट्स हैं वाई एक्सिस पे अगेंस्ट द इंडिसेस ऑन द एक्स एक्सिस। ड्रॉ अ लाइन 0 m टू n m की कमांड हमारे पास बता रही है कि लाइन विल बी ड्रॉन रिप्रेजेंटिंग द मीन हमारे पास बता रहा है। m इज इक्वल टू मीन r बताएगा कैलकुलेट द मीन ऑफ द जनरेटेड रैंडम डाटा। होल्ड ऑन की कमांड हमारे पास बताएगी कि अलाइंग फॉर मल्टीपल प्लॉट्स ऑन द सेम ग्राफ, मल्टीपल प्लॉट्स बन रहे हैं, होल्ड ऑन की कमांड बता रही है। प्लॉट 0 से n जो है हमारे पास और m से m, प्लॉट अ लाइन फ्रॉम 0 से m 0, m to n, m to represent the mean value across all data points। होल्ड ऑफ की कमांड बता रही है एंड द होल्ड ऑन स्टेट फाइनलाइजिंग पॉइंट, फाइनलाइज करना प्लॉट को वो होल्ड ऑफ की कमांड बताएगी। टाइटल टाइटल मीन ऑफ रैंडम यूनिफॉर्म डाटा एड्स द टाइटल ऑफ द प्लॉट, इसकी कमांड जो हम लगाएंगे तो इसका मतलब है टाइटल जो है प्लॉट का वो ऐड करना। अब इसको रन करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा। जब हमारे पास ये कोड रन करेंगे तो हमारे पास इस तरह की आउटपुट आएगी, मतलब मीन्स ऑफ यूनिट रैंडम यूनिफॉर्म डाटा की आउटपुट हमारे पास ये डिस्प्ले हो जाएगी। टास्क नंबर 9 है माई वेक्टर 31415926। इसमें हमने वेक्टर को इनिशियलाइज किया हुआ है विद माई वेक्टर से और उसकी वैल्यूज हमारे पास गिवन है। रिजल्ट माई वेक्टर माई मिनिमम और माई वेक्टर की कमांड बता रही है हमारे पास कि कॉल द फंक्शन माई मिनिमम को कॉल किया हुआ है विद माई वेक्टर एज आर्ग्यूमेंट हो रहा है
और स्टोर कर रहा है रिजल्ट वेरिएबल रिजल्ट में वेरिएबल स्टोर हो रहा है। और डिस्प्ले मिनिमम वैल्यू ऑफ द वेक्टर नंबर टू स्ट्रिंग रिजल्ट का मतलब ये है कि डिस्प्ले द रिजल्ट यूजिंग डिस्प्ले। हमारे पास रिजल्ट जो होगा वो डिस्प्ले फंक्शन में होगा। द रिजल्ट इज कन्वर्टेड इनटू द स्ट्रिंग और रिजल्ट जो होगा वो कन्वर्ट होगा स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग मतलब नंबर्स में यूजिंग नंबर टू स्ट्रिंग में। और फंक्शन मिनिमम वैल्यू का मतलब ये है कि मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू माई मिनिमम वेक्टर का मतलब ये है कि डिफाइन अ फंक्शन नेम माई मिनिमम। फंक्शन का नाम जो है माई मिनिमम है जो कि वेक्टर को ले रहा है एज एन इनपुट में। इफ इज एम्प्टी वेक्टर का मतलब ये है कि चेक इफ द इनपुट वेक्टर इज एम्प्टी। अगर इनपुट वेक्टर जो होगा एम्प्टी है उसको चेक करेगा। एरर इनपुट वेक्टर इज एम्प्टी मतलब रेज एन एरर। यहाँ पर एरर राइज होगा आएगा इफ द इनपुट वेक्टर इज एम्प्टी। अगर इनपुट वेक्टर हमारे पास एम्प्टी होगा तो हमारे पास एरर आएगा। मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू मीन वेक्टर का की कमांड हमारे पास बता रही है कि कैलकुलेट द मीन ऑफ द वेक्टर एंड असाइन इट मतलब कैलकुलेट द मीन ऑफ द वेक्टर। मीन ऑफ द वेक्टर को कैलकुलेट करना है और उसको असाइन कर देना है। मिनिमम वैल्यू का मतलब ये है कि नोट दैट द स्पेस इन द वेरिएबल नेम शुड बी रिमूव फ्रॉम प्रॉपर सिंटैक्स मिनिमम वैल्यू। और एंड पे हम एंड लिख देंगे। जब इसको रन करेंगे हमारे पास तो इसकी आउटपुट जो आएगी मिनिमम वैल्यू ऑफ द वेक्टर जो होगी वो 3.875 आएगी। नेक्स्ट हमारे पास कोड है मैक्सिमम का। सेम एज इट इज़ प्रीवियस वन की तरह ही है कि मिनिमम जैसे किया था मिनिमम माई मिनिमम वाला का। जो हमारे पास टास्क 9 था इसी तरह टास्क 10 भी ऐसा ही है। मैक्सिमम वैल्यू बिल्कुल कोड एज इट इज़ है। जहाँ जहाँ मिनिमम था वहाँ मैक्सिमम लिख दिया है और इसको रन करेंगे तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी जो कि 3.875 है। नेक्स्ट हमारे पास सेम कोड एज इट इज़ है। 12 हमारे पास 9 10 11 कोड ये है। टास्क नंबर 11 है हमारे पास उस सेम एज इट इज़ 10 की तरह ही है 10 और 9 की तरह। इसमें हमें एवरेज वैल्यू बतानी है वेक्टर की। तो ये हम रन करेंगे तो इसमें हमारे पास एवरेज वैल्यू जो है आउटपुट पे शो हो जाएगी 3.875। नेक्स्ट हमारे पास डिस्प्ले सॉर्टेड वेक्टर जो आ रहा है। जहाँ जहाँ एवरेज वैल्यू वेक्टर लिखा होगा एवरेज वैल्यू वहाँ सॉर्टेड वेक्टर जो है वो लिख देना है। सेम एज इट इज़ वैसे ही कोड है। रन करेंगे तो हमारे पास ये सॉर्टेड वैल्यू आ जाएगी। मतलब सॉर्टेड का मतलब ये है कि अरेंज फॉर्म में। ये हमारे पास 3 1 4 5 9 2 6 है तो ये हमारे पास सॉर्ट करके ये आ जाएगी। सॉर्टेड का मतलब सीक्वेंशियल मैनर में हमने वेक्टर को लिख देना है। नेक्स्ट हमारे पास जहाँ जहाँ सॉर्टेड वेक्टर था वहाँ रिवर्स वेक्टर लिख देना है। तो ये हमारे पास रिवर्स वेक्टर की आउटपुट शो। टास्क 14 है जिसमें हमारे पास टाइम जो है 0 से 0.5 के दरमियान इसकी रेंज है और 0.01 जो है उसका स्टेप साइज़ है। x इज इक्वल्स टू रैंड 51 हमारे पास इंडिकेट कर रहा है कि कॉलम वेक्टर जो है x उसके अंदर 50 जो है रैंडम वैल्यूज़ है फ्रॉम अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन 0 एंड 1। y इज इक्वल टू साइन 10 टू पाई t। इसकी कमांड हमारे पास बता रही है कि जनरेट अ साइन वेव सिग्नल y with a frequency of 10 Hz using the time vector t। सब प्लॉट 1 to 1 और प्लॉट x की कमांड बता रही है क्रिएट अ सब प्लॉट ग्रिड with 1 row and 2 columns and select the first subplot for a subsequent plot। द कमांड प्लॉट x की जो कमांड है वो हमारे पास बता रही है प्लॉट द वेक्टर x इन दिस सब प्लॉट 1 2 2 और हमारे पास प्लॉट y हमारे पास बता रहा है select the second subplot in the same grid and plot in the sine wave signal y in this subplot। जब हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास ये वाला हमारे पास ग्राफ शो हो जाएगा। टास्क 15 है हमारे पास जिसमें हमारे पास जो है x जो है वो वेक्टर है जिसकी रेंज है 0 से 2 पाई के दरमियान और उसके 100 पॉइंट्स हैं। y1 जो है वो साइन फंक्शन है जो कि अप्लाई हो रहा है ईच पॉइंट इन x में। y2 जो है वो कोसाइन फंक्शन है जो कि अप्लाइड हो रहा है ईच पॉइंट इन x में। y3 जो है वो टेंजेंट फंक्शन है जो कि अप्लाई हो रहा है
ईच पॉइंट इन एक्स में, और y4 जो है वो कम्बिनेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल लिखेगा एंड कोसाइन फंक्शन अप्लाइड टू ईच पॉइंट इन एक्स। फिगर जो है वो इनिशिएट्स कर रही है कि हमारे पास एक न्यू फिगर है। सब प्लॉट 2 to 1 जो है वो सिलेक्ट कर रहा है फर्स्ट सब प्लॉट को। प्लॉट जो है एक्स और y1 जो है वो प्लॉट कर रहा है कि साइन फंक्शन इन द फर्स्ट सब प्लॉट। टाइटल प्लॉट 1 जो है वो सेट्स द टाइटल ऑफ द फर्स्ट सब प्लॉट। और जो कोड जो है, ये जो कोड है हमारे पास वो रिपीट कर रहा है 3 सब प्लॉट्स को। सब प्लॉट 2 to 2, सब प्लॉट 2 to 3 और सब प्लॉट 2 to 4 विद डिफरेंट फंक्शन प्लॉटेड एंड टाइटल सेट। और उसके बाद इसको रन करेंगे तो ये हमारे पास आउटपुट आ जाएगी।